So today, I wanted to speak about walking in the light. और आज मैं ज्योति में चलने के विषय में बात करना चाहता हूँ। So we'll just look at 1 John chapter 1. और पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 5वां वचन। It says, "This is the message we have heard from him and announced to you that God is light, and in him there is no darkness at all." वहां लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। So here John is speaking after walking with the Lord for many years. और यूहन्ना यहाँ ये बात तब कह रहा है जब वो कई वर्षों तक प्रभु के साथ चल चुका है। And he has a very deep fellowship with the Lord, and he has touched him, seen him, and he's walking closely with the Lord. और उसका प्रभु के साथ एक बहुत ही गहरी संगति, गहरी सहभागिता है और उसने प्रभु को देखा है, छुआ है और बहुत ही एक गहरा संबंध उसका प्रभु के साथ है। And he has close fellowship with the Father and the Son Jesus Christ. और पिता और पुत्र यीशु मसीह के साथ उसकी बहुत ही नजदीक की संगति है। And he says, this is the message, like what is the main thing which he heard, or what is the main thing which he got when he with this fellowship with the Father and the Son. और वो कहता है ये समाचार या ये संदेश है, कौन सी मुख्य बात उसने पाई थी जब उसका पिता और पुत्र के साथ उसकी संगति थी। तो he says that the main thing is God is light and in him there is no darkness. वो कहता है मुख्य बात ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। That means the only person who can come in close fellowship with the Lord are the people who love light and don't want darkness in their lives. इसका मतलब केवल वे ही लोग जो प्रभु के साथ संबंध में संगति में आ सकते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो ज्योति से प्रेम करते हैं और अपने जीवन में कोई अंधकार नहीं चाहते। So if I have some hidden areas or some secret areas in my life, और अगर मेरे जीवन में ऐसे कुछ गुप्त क्षेत्र है that I don't want to open myself or don't want to give myself to the Lord, जहां मैं उन क्षेत्रों को खोलना नहीं चाहता या उन क्षेत्रों को प्रभु को नहीं देना चाहता, तो that means I'm not walking in the light. इसका ये मतलब है कि मैं ज्योति में नहीं चलता। In verse 1 John 1:6 it says, if we say we have fellowship with him and yet walk in darkness, we lie and do not practice the truth. और पहला यूहन्ना 1:6 कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। This is one of the greatest lie that many times Christians can say. और ये एक सबसे बड़ा झूठ है जो कई बार मसीही लोग कह सकते हैं। They can say that they have fellowship with God and yet walk in darkness. वे ये कहते हैं कि उनके परमेश्वर के साथ संगति है पर उसके बावजूद वे अंधकार में चलते हैं। That means they are speaking a lie and they are not speaking the truth. इसका मतलब वे झूठ कह रहे हैं और वे सत्य नहीं कह रहे। So there are some practical examples we can take in our daily life. और हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हम कुछ व्यवहारिक उदाहरण ले सकते हैं। For example, if I am regularly speaking a lie in my office for my work, उदाहरण के तौर पर अगर मेरे काम के लिए मैं निरंतर अपने ऑफिस में अगर कोई झूठ कह रहा हूं, तो that means I am walking in darkness. इसका मतलब मैं अंधकार में चलता हूं। I know that lying is wrong and I still practicing it. मैं जानता हूं कि झूठ बोलना गलत है, उसके बावजूद मैं उसको कर रहा हूं। And then if I say I have fellowship with God, I'm saying a lie, and that is not true. और फिर अगर मैं कहता हूं कि इसके बावजूद मेरी परमेश्वर के साथ संगति है, तो फिर ये एक झूठ है, ये सत्य नहीं है। I cannot practice a sin knowingly and still say that I'm in fellowship with God. मैं जानते हुए जानबूझकर कोई पाप नहीं कर सकता और उसके बावजूद ये नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर के साथ संगति में हूं। That doesn't go together. ये दोनों बातें एक साथ नहीं जाती। Light and darkness cannot walk together. अंधकार और ज्योति एक साथ नहीं चल सकते। In other areas also, for example, if I'm not paying my taxes, if I'm not faithful in my righteous in money matters, I'm doing some fraud, and I'm saying that I'm fellowship with God, that doesn't work together.
दूसरे क्षेत्रों में भी अगर मैं अपने जो टैक्सेस है, जो कर है, उसको मैं अगर नहीं चुकाता, तो अगर मैं पैसे के मामलों में विश्वास योग्य नहीं हूं, तो अगर मैं किसी प्रकार की धोखाधड़ी कर रहा हूं, तो और फिर मैं अगर कहता हूं कि परमेश्वर के साथ मेरा संगति है, तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं जाती। Or if I'm hurting people either at home or in my place of work, अगर मैं लोगों को चोट पहुंचा रहा हूं, या तो मेरे घर पे या जहां मैं काम करता हूं वहां, and there is no sense for me to, no conscience in me to ask forgiveness or to clear the thing which I hurt people for. और मेरे अंदर ये अगर विवेक ना हो कि मैं लोगों से माफी मांगू और जो कुछ मैंने किया है उस बात को मैं सही कर दूं, तो And I'm walking as if nothing has happened wrong. और मैं इस प्रकार चलता हूं मानो कुछ भी गलत नहीं हुआ है, And every day I can speak angrily, I can hurt people, and still I can be at rest and not be bothered about that. और हर दिन मैं गुस्सा करके चल सकता हूँ, लोगों को चोट पहुंचा सकता हूँ, और उसके बावजूद मैं विश्राम में बना रहता हूँ और मुझे उन बातों से कोई अगर फर्क नहीं पड़ता हो, That means I am in darkness. I am not in fellowship with God. तो इसका ये मतलब है कि मैं अंधकार में हूं और मेरे परमेश्वर के साथ संगति नहीं है। In other words, I am not a Christian. दूसरे शब्दों में मैं एक मसीही नहीं हूं, I am walking in darkness. मैं अंधकार में चल रहा हूं। That is why it says in verse 7, if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. और इसलिए 7वें वचन में लिखा है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Many times we quote that verse that the blood of Jesus cleanses us from all sin. That is only part of that verse. और कई बार हम इस वचन के छोटे भाग को लेकर कहते हैं कि प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, पर ये उस पूरे वचन का केवल एक छोटा हिस्सा है। But the main, there is a condition to that promise. पर इस वायदे के साथ एक शर्त जुड़ी हुई है। It says, if we walk in the light. यहाँ लिखा है यदि हम ज्योति में चले तो। That means only if I'm walking, as long as I'm walking in the light, only during that period, the blood of Jesus will cleanse me. इसका मतलब अगर मैं ज्योति में चलूं और जितना समय मैं ज्योति में चलता हूं, बस उतने ही समय प्रभु यीशु का लहू मुझे शुद्ध कर सकता है। But if I am walking in darkness and I'm conscious of sin, but I'm still walking in that sin, then the blood of Jesus will not cleanse me. पर अगर मैं अंधकार में चलता हूं और मुझे पाप के, मेरे जीवन में पाप है और उसके बावजूद मैं उस पाप में चल रहा हूं, तो फिर प्रभु यीशु का लहू मुझे उस पाप से शुद्ध नहीं कर सकता। So we should understand these things, and there is something where not walking in the light is very serious. और इसलिए हमें इन बातों को समझना है और ये समझना है कि ज्योति में नहीं चलना ये एक बहुत गंभीर बात है। That means if I am tolerating some sin in my life, it is not something which is very casual or something which we can just ignore. इसका मतलब अगर मैं मेरे जीवन में किसी पाप को सहन करता हूं, तो ये कोई आम बात नहीं है या ऐसी बात नहीं है जिसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं। It is very serious, and we need to deal with it very seriously. ये बहुत ही गंभीर है और हमें बहुत ही गंभीरता से इस बात को लेना है। In verse 8 it says, if we say we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. 8वां वचन कहता है, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को हम धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। That means some sin has happened and I am just saying that I have no sin. इसका मतलब कोई पाप हुआ है, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि नहीं, कोई पाप नहीं है। For example, there are sometimes there is some argument between two people. कभी-कभी दो लोगों के बीच में कोई वाद होता है, कोई आर्गुमेंट होती है। And then one person recognizes that he has done something wrong. और फिर एक व्यक्ति ये पहचान लेता है कि उसने कुछ गलत किया है। But the other person just assumes that he has done nothing wrong, and all the wrong is by the person who has admitted his failure. और दूसरा व्यक्ति बस ये मान लेता है कि उसने खुद तो कोई गलती नहीं की, सारी गलती उसी व्यक्ति की है जिसने मान लिया था कि उसने कोई गलती की है। So what it says is, verse 8, if we say we have no sin, that person who says he has not sinned or he says he has no sin,
he's deceiving himself. और यहाँ 8वां वचन यही कहता है, अगर हम अपने आप को कहे कि हम में कोई पाप नहीं, या जो भी व्यक्ति कहता है मेरा कोई पाप नहीं, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। That means he has sinned, but he is just deceiving himself. इसका मतलब उसने पाप तो किया है, पर वो अपने आप को धोखा दे रहा है। There is something called lying to ourselves. ऐसा भी कुछ होता है जब हम अपने आप से झूठ कहते हैं। So that is what we are doing when we have sinned and we say we have not sinned. और यही होता है जब हम पाप करते हैं और उसके बावजूद हम कहते हैं कि नहीं, हमने कोई पाप नहीं किया। So it is good that every time we fall, we don't justify or cover it up. और इसलिए ये अच्छा है कि जब कभी हम गिरते हैं, हम अपने आप को सही ठहराने की कोशिश ना करें या उसको ढाकने की कोशिश ना करें। And verse 9 says, if we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. और 9वां वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। So what God expects is total honesty and acknowledgement of our true condition. और परमेश्वर जो हमसे अपेक्षा रखता है वो है पूरी तरीके से और ईमानदार तरीके से हम हमारी जो वास्तविकता में अवस्था है उसको हम उसके सामने मान ले, Instead of just pretending that something has not happened. इसके बजाय कि हम बस ये दिखावा करें कि कुछ भी नहीं हुआ है। If I have lusted with my eyes, I should not pretend that I was just admiring the beauty or something like that. अगर मैंने अपनी आंखों से लालसा की है तो मुझे कभी ये नहीं कहना है, ये दिखावा नहीं करना है कि नहीं मैं सिर्फ कोई सुंदरता को देख रहा था। Don't justify your sin when we realize that we have sinned. अपने पाप को कभी भी सही ना ठहराए, धर्मी ना ठहराए, अगर हम जान जाते हैं कि हमने कोई पाप किया है तो Just come before God and acknowledge it as it is. केवल परमेश्वर के सामने आकर हम जैसे है उसको वैसे मान ले। And when we do that, that is the time He is faithful. God is faithful and righteous to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. और जब हम ये करते हैं तो वो धर्मी है और विश्वास योग्य है हमें अपने पापों से को क्षमा करने के लिए और सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए। And again it says in verse 10, if we say we have not sinned. और फिर एक बार 10 वचन में लिखा है, यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया। There is a tendency in us where we sin and we don't acknowledge our sin. और हमारे अंदर ये एक आदत सी है कि हम पाप करते हैं पर हमने पाप किया ये इस बात को हम मानते नहीं है। Especially when in our thoughts or in our attitudes, when nobody watches us, we have a tendency to just say that no, it's not happened. विशेषकर हमारे विचारों में और हमारे जो मनोभाव या रवैये होते हैं उसमें जहां कोई देख नहीं पाता, हमारी ये फितरत होती है कि हम कहते हैं कि नहीं ऐसा पाप नहीं हुआ है। That is why we are not receiving more and more light on ourselves. इस वजह से हम अपने आप के विषय में अधिक और अधिक मात्रा में ज्योति नहीं पाते। That is why we are not able to have close fellowship with God. इस वजह से हम परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संबंध या संगति नहीं कर पाते। So if we want close fellowship with God, the first step is to be very sensitive to sin. और अगर हम परमेश्वर के साथ संगति करना चाहते हैं तो पहला कदम यही है कि हम पाप के प्रति बहुत संवेदनशील बने। And whenever there is some sin where we recognize, we need to acknowledge it. और जब कभी कोई पाप होता है और हम उसको पहचान जाते हैं तो हमें उसको मान लेना है। So even if there is sometimes there is an issue between two people. और कभी-कभी दो लोगों के बीच में कोई समस्या होती है। And maybe we feel that the like 99% of the fault is in the other person. और शायद हमें लगता है कि 99% जो दोष है वो सामने वाले व्यक्ति के साथ है। But still there is 1% fault in me which I could have done better. पर उसके बावजूद 1% गलती या दोष मेरा भी है जहां मैं शायद बेहतर कर सकता था। Yeah, some way I could have not allowed that situation to come. किसी ना किसी तरीके से मैं उस परिस्थिति को नहीं आने देता था। So that person who acknowledges that fact and humbles himself is the one who can have fellowship. और जो व्यक्ति इस सत्य को मान लेता है और अपने आप को नम्र करता है, यही व्यक्ति संगति कर सकता है। So that is sometimes many cause for many fights in families. और परिवारों में कई झगड़ों का यही एक कारण होता है। Because we have not recognized to accept our own faults.
क्योंकि हमने इस बात को नहीं सीखा है कि हम अपनी ही गलतियों को मान ले। We want to blame others. हम दूसरों को दोष लगाना चाहते हैं। So this is one area which we can work out, and God can do a work in our family as well. और ये एक क्षेत्र है जहां हम काम कर सकते हैं और परमेश्वर हमारे परिवारों में भी काम कर सकता है। One more thing which God, 1 John 2:9 it says. एक 1 और John बात 2. पहला यूहन्ना 2:9 में लिखी है, The one who says he is in the light and yet hates his brother is in the darkness until now. जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार ही में है। So this is also one thing which we understand, that if I have a hatred towards one brother, और ये भी एक बात हम यहाँ से सीखते हैं, अगर एक भाई के खिलाफ भी हमारे हृदय में कोई बैर है, कोई शत्रुता है, तो then I am not in the light. फिर मैं ज्योति में नहीं हूं। It doesn't say that if you hate many, if the one who's in the light and hates his brothers, it doesn't say like that. यहाँ ये नहीं लिखा है कि यदि कोई कहता है मैं ज्योति में हूं और अपने भाइयों से, कई भाइयों से बैर रखता है, ऐसा नहीं लिखा। If he hates his brother, that means even if you hate one brother, और यहाँ लिखा है और वो अपने भाई से, मतलब आप एक भी भाई से अगर बैर रखते हो तो that means I am not in the light. इसका मतलब मैं ज्योति में नहीं हूं। And then it says the one who loves his brother abides in the light. और फिर 10वां वचन कहता है जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है। And there is no cause for stumbling in him. और ठोकर नहीं खाता, इंग्लिश में लिखा है ठोकर का कोई कारण उसके पास नहीं है। That means if I love my brother, there is no cause for something he's doing and I am stumbling because of that. इसका ये मतलब है अगर मैं अपने भाई से प्रेम करता हूं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि मेरा भाई कुछ कर रहा है और उस वजह से मैं ठोकर खा रहा हूं। If I hate him or if I don't like him, there are hundreds of reasons which cause me to stumble. अगर मैं उससे बैर रखता हूं या मैं उसको नापसंद करता हूं तो फिर ऐसे 100 कारण होंगे जिस वजह से मैं ठोकर खा सकता हूं। Maybe he talks in a certain way I don't like, so I hate him. शायद वो एक विशेष प्रकार से, विशेष तरीके से बात करता है जो मुझे पसंद नहीं, इस वजह से मैं उससे घृणा करता हूं, बैर रखता हूं। Or maybe he talks to someone else and I feel jealous and that's why I hate him. या वो किसी और व्यक्ति से बात करता है, मुझे जलन महसूस होती है और मैं उससे घृणा करता हूं। And just like, or maybe just like that, I don't like the way he is. या बस ऐसे ही वो जैसा है वही मुझे नहीं पसंद। But that is because the main reason it says here is if you love him, then there will be no cause for stumbling. पर यहाँ वही जो मुख्य बात लिखी है, यदि तुम उससे प्रेम करते हो तो फिर ठोकर खाने के लिए कोई कारण ही नहीं रहेगा। If I feel that my brother has stumbled me or hurt me in some way, और अगर मुझे लगता है कि मेरे भाई के वजह से मैंने ठोकर खाई है या मेरे भाई ने किसी प्रकार से मुझे चोट पहुंचाई है तो, and I am not able to forgive him, और मैं उसको क्षमा नहीं कर पा रहा, the reason is I don't love him. कारण यह है कि मैं उससे प्रेम नहीं करता। And if I continue in that, और अगर मैं उसी बात में बना रहूं या उसी में जारी रहूं तो verse 11 says, but the one who hates his brother is in the darkness and walks in the darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. और 11वां वचन कहता है पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। So these are some areas which John very clearly says that we are walking in darkness. और ये कुछ क्षेत्र है जहां यूहन्ना बड़े स्पष्टता से कहता है कि हम अंधकार में चलते हैं। And when we see something of this in our life, और जब हम इनमें से कुछ बातें हमारे जीवन में देखते हैं, the one who loves the light will come running to God to see what is wrong with him. जो कोई ज्योति से प्रेम करता है तो वो परमेश्वर के पास दौड़ते हुए आएगा ये देखने के लिए कि उसमें क्या गलत है। But one who does not love the light but loves darkness will try to push the blame on that person. He is bad, so I don't like him. और जो कोई ज्योति से प्रेम नहीं करता, अंधकार से प्रेम करता है, तो वो दूसरे व्यक्ति पर दोष ढकेलना चाहेगा कि वो ऐसा है, उसकी ये गलती है।
he always is like that, so I cannot love him. वो हर समय ऐसा ही है, ऐसा ही करता है, इस वजह से मैं उससे प्रेम नहीं कर सकता. So we have to check ourselves when something happens and I see something in my heart, whether I am somebody who is blaming that person or whether I am somebody who is judging myself. और brother, can you repeat? Sorry. So if some incident happens and we see some hatred in our heart. और अगर कोई घटना होती है और हमारे हृदय में हम कोई बैर या घृणा को देखते हैं, तो there are two kinds of people. तो दो प्रकार के लोग होते हैं. One who are walking in the light. एक वो लोग जो ज्योति में चलते हैं. They will judge themselves and they will come before God in repentance. वे अपने आप का न्याय करेंगे और परमेश्वर के सामने मन फिराव में आएंगे. And they will ask God for grace to love that brother. और वे परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे कि वे उस भाई से प्रेम कर पाए. But there is another group of people who are walking in darkness but pretend that they are walking in the light. पर एक दूसरा लोगों का समूह है जो चलते तो अंधकार में है पर ये दिखावा करते हैं कि वे ज्योति में चल रहे हैं. And they will maybe smile at that brother and show that they love him. और शायद वे उस भाई को देखकर मुस्कुराएंगे और ये दिखाएंगे कि वे उनसे प्रेम कर रहे हैं. But in their heart and their homes, there is hatred in their conversations. पर उनके हृदय में और उनके घरों में, उनके बातचीत में बहुत नफरत होती है. So we need to check ourselves what category we are in. और हमें अपने आप को जांच कर देखना है कि इन दो में से हम किस श्रेणी में है. Are we people who judge ourselves or are we people who just blame others? क्या हम ऐसे लोग हैं जो अपने आप का न्याय करते हैं या हम ऐसे लोग हैं जो दूसरों को दोष लगाते हैं. And one more thing which about walking in the light, it says in Ephesians 5:11. और ज्योति में चलने के विषय में एक और बात जो इफिसियों 5:11 में लिखी है. It says about do not participate in the deeds of darkness but instead expose them. वहां लिखा है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो वरन उन पर उलाहना दो या उनको प्रकट करो. That means mostly things which are done in darkness are done in secret. ज्यादातर बातें जो अंधकार में की जाती है वो गुप्त में की जाती है. So there may be a secret sinful life which I am living. और ऐसा हो सकता है कि मेरा एक गुप्त पापमय जीवन है जो मैं जी रहा हूँ. And that means I am not in the light. इसका यह मतलब है कि मैं ज्योति में नहीं हूँ. And that hidden areas I just kept it so secretly, and I am living in that secret sin in my life. और वे जो छिपे हुए क्षेत्र हैं उनको मैंने इतने गुप्त रखे हैं और उन्हीं गुप्त पापों में मैं जी रहा हूँ. In verse 12 it says, for it is disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret. और 12वां वचन कहता है क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है. So there are some things which I cannot even speak because those are done in my secret and nobody knows about it. और ऐसी कुछ बातें जिनके विषय में मैं बात भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उनको गुप्त में किया है और कोई उसके विषय में नहीं जानता. So I don't want to condemn anyone. It's not to condemn us that God speaks to us. मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता क्योंकि परमेश्वर हम पर दंड की आज्ञा के लिए या दोष लगाने के लिए हमसे बात नहीं करता. The blood of Jesus can cleanse every sin. यीशु का लहू हर एक पाप को शुद्ध कर सकता है. If we come to him and confess in repentance. अगर हम उसके पास आकर मन फिराव में उस पाप का अंगीकार करें तो. It says in Hebrews 7:25 that he is able to save forever those who draw near to God through him. इब्रानियों 7:25 कहता है जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है. Since he always lives to make intercession for them. क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है. So Jesus is able to save us. और यीशु मसीह हमारा उद्धार कर सकता है. Even those secret things which we are very ashamed of. वो उन गुप्त बातों से भी जिनके विषय में आपको लज्जा आती है. Even those things you can come and share to Jesus. और उन बातों को भी आप यीशु मसीह के पास आकर उससे बांट सकते हैं. You cannot share with any man. शायद आप किसी मनुष्य से उसको नहीं बांट सकते. But Jesus will not condemn you. पर यीशु मसीह आपको दोष नहीं लगाएगा. So there is no need to live in that secret, shameful and that shame and guilt to carry that all our lives.
और इसलिए उस गुप्त अपराधीपन में और उस लज्जा में जीवन भर जीने की कोई जरूरत नहीं। We can come to him and we can ask his grace to help us. हम उसके पास आ सकते हैं और उससे अनुग्रह मांग सकते हैं ताकि वो हमारी सहायता करे। We do not live in that darkness. उस अंधकार में हम न जिए। There's no need to continue in that darkness. उस अंधकार में जारी रखने के लिए, वहीं रहने के लिए कोई हमारे पास कारण नहीं है। In verse 13 it says, but all things become visible when they are exposed by the light. Which chapter? Sorry, Ephesians 5:13. Oh, one. और इफिसियों 5:13 में लिखा है, पर जितने कामों पर उलाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। Yeah. So it says in verse 14, awake sleeper, arise from the dead and Christ will shine on you. और 14वां वचन कहता है, इस कारण हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। We just need to shake ourselves from our sleep and come to Christ and cry out to him. हमें बस अपने नींद से अपने आप को जगाना है, मसीह के पास आकर उसको पुकारना है। Even if it's something shameful in our lives, we can come to him and we can pour out our heart before him. अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ लज्जा लाने वाली भी बात है, शर्मनाक बात है, उसके बावजूद हम उसके पास आकर अपने हृदयों को उसके सामने हम खोल सकते हैं। He will cleanse us so thoroughly that he will not remember our sins anymore. वो हमें इतने पूरी तरीके से सिद्ध तौर पर शुद्ध करेगा कि वो फिर हमारे पापों को स्मरण ना करेगा। And we can walk in the light. और हम ज्योति में चल सकेंगे। There will be no remembrance of our sin anymore. और हमारे पाप की कोई याद नहीं होगी। And we can rejoice in the Lord all the time. और हम प्रभु में हर समय निरंतर आनंद कर पाएंगे। We can be restored to fellowship with him. और उसके साथ संगति में हम पुनर्स्थापित हो सकेंगे। In Matthew 5:14, Jesus says, "You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden." और मत्ती 5:14 कहता है कि तुम इस जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता। Verse 15 says, "Does anyone light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand?" और 15 वचन कहता है, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। So what is this basket that prevents us from our light from shining? और ये पैमाना या ये बर्तन कौन सा है जो हमारे ज्योति को चमकने से रोकता है? It is talking about a house, and in that house, why is my light not shining out? और वो एक घर के विषय में यहाँ कह रहा है, और अगर मैं उस घर में हूं तो मेरी ज्योति वहां क्यों नहीं चमक रही? Because it is hidden with a basket. क्योंकि वो एक पैमाने के नीचे छिपी हुई है, एक बर्तन के नीचे छिपी हुई है। And that basket is my own self will or a self life. और वो जो बर्तन है वो मेरा खुद ही का जीवन है। That prevents that light which God has given in my heart to come forth. और वो जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में जीवन दिया है, उस जीवन को रोकता है कि वो बाहर प्रकट ना हो। Because I have my own self will which does not allow that life to come outside. क्योंकि मेरा वो स्वयं का इच्छा है जो उस जीवन को बाहर नहीं आने देगा। And as long as I don't crucify my self will, that light will not come out. और जब तक मैं अपने खुद ही के जीवन को क्रूस पर नहीं चढ़ाता, वो ज्योति बाहर नहीं आएगी। In 2 Corinthians 4:6 it says, "For God who said light shall shine out of darkness is the one who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ." Brother, verse 2 Corinthians 4:6. और दूसरा कुरिन्थियों 4:6 में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। So God has put inside us the light of the life of Jesus. और परमेश्वर ने हमारे अंदर यीशु मसीह के जीवन की ज्योति हमारे अंदर उसने डाली है। But the life cannot come out because the self will is against that life. पर वो जीवन जो है वो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा जो खुद ही का जीवन है, खुद ही की इच्छा है, वो उस जीवन के विपरीत है। So in a situation where I can be bitter, I need to die. और किसी परिस्थिति में जहां मुझे कड़वाहट महसूस हो रही है, मुझे मरने की आवश्यकता है।
That means I say I will not be bitter. I will not react in the way which my self wants. इसका मतलब मैं कहता हूं कि नहीं, मैं कड़वाहट नहीं करूंगा, मैं इस प्रकार प्रतिक्रिया नहीं दूंगा जो मेरा खुद ही का जीवन चाहता है कि मैं दूं। And when I do that, when I deny myself, the life of Jesus will come out. और जब मैं वो करता हूं और अपने आप का इनकार करता हूं तो यीशु मसीह का जीवन बाहर आएगा। If I don't do that, every time my own will come out. अगर मैं ये नहीं करता तो हर समय मेरी ही इच्छा बाहर आती रहेगी। Maybe the life of Jesus is inside, but it cannot come out until I deny my self will. शायद यीशु मसीह का जीवन अंदर है, पर वो बाहर तब तक नहीं आ सकता जब तक मैं अपने खुद ही की इच्छा का इनकार नहीं करता। Jesus said in John 12:24, यीशु मसीह ने यूहन्ना 12 उसके 24 में कहा, Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. If it dies, it bears much fruit. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। See, a husband can be a very strong husband and think that he is very godly and still remain alone. और एक पति जो है वो शायद बहुत ही एक मजबूत व्यक्ति होकर बन सकता है और उसके बावजूद वो अकेला रह सकता है। He may know a lot of Bible verses, he may have lot of knowledge, but he is still alone. वो शायद कई बाइबल के वचनों को जानता है, उसके पास बहुत सारा ज्ञान है, पर उसके बावजूद वो अकेला है। Because he cannot go to the ground and die. क्योंकि वो उस भूमि में पड़कर मर नहीं सकता। And that is why it cannot bear any fruit. और इस वजह से वो कोई फल नहीं लाता। Similarly, a wife may be very strong and maybe praying a lot and knowing a lot of God's word. और शायद एक पत्नी भी ऐसी हो सकती है, बहुत ही वो बलवंत है, बहुत प्रार्थना करती है, परमेश्वर के वचन को वो बहुत ज्यादा जानती है। But till she denies her will and goes down and dies, they cannot produce any fruit together as a family. पर जब तक वो अपनी इच्छा का इनकार करके नीचे नम्र होकर मरती नहीं भूमि में पड़कर, वे एक परिवार के रूप में कोई फल नहीं ला पाएंगे। Even in the personal life, she cannot bear fruit. उसके व्यक्तिगत जीवन में भी वो फल नहीं ला पाएगी। A brother may be very talented and very gifted, but unless and until that brother falls to the ground and dies, एक भाई के पास शायद बहुत सारी क्षमताएं हैं, बहुत सारे वरदान है, पर जब तक वो भूमि में पड़कर मरता नहीं, he is useless to build the church. वो कलीसिया का निर्माण करने के लिए बिल्कुल निकम्मा है। And that is what we all need to bear in our hearts. और यही बात हमें अपने हृदय में याद रखनी है। It is not our smartness or our capabilities that God can use. कि वो हमारी चतुरता या हमारी क्षमताएं नहीं है जिसका इस्तेमाल परमेश्वर कर सकेगा। God wants us to go to the ground and die. परमेश्वर चाहता है कि हम भूमि में पड़कर मरे। That means I am saying no to my own will. इसका मतलब मैं अपने स्वयं की इच्छा को नहीं कहता हूँ। And more regularly I do that, more of life of Jesus can come through me. और जितना निरंतर मैं इस बात को करता हूँ, उतना ही अधिक मात्रा में यीशु मसीह का जीवन मुझसे बाहर आएगा। In Philippians 2:14 and 15, फिलिपियो 2 उसके 14 और 15 में it also speaks about shining as light. वहां भी ज्योति बनकर चमकने के विषय में लिखा है। It says, do all things without grumbling and disputing, वहां लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, so that you will prove yourself to be blameless and innocent children of God, above reproach in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as lights in the world. ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। So here also there is a possibility that I can be shining as a light in the world. और यहाँ भी एक संभावना है कि मैं इस जगत में एक ज्योति बनकर चमकूं। But I need to die to grumbling and disputing. पर फिर कुड़कुड़ाना और विवाद करना या शिकायत करने के लिए मुझे मरना पड़ेगा। Especially in our homes, continuously grumbling while we are doing in our hearts, grumbling, and instead of having a atmosphere of thanksgiving, always grumbling in our hearts. विशेषकर हमारे घरों में, जहां इसके बजाय कि हमारे हृदय में एक निरंतर तौर पर आभार या धन्यवाद हो, हर समय हम अपने मनों में कुड़कुड़ाते रहते हैं। And always having a dispute with anybody and a mind of dispute with others.
और हर समय दूसरों के साथ एक विवाद भरा मन होता है, दूसरों से हमारा कोई विवाद होता है। Always having a question, why this, why that, why this, always having a dispute. हमेशा एक प्रश्न होता है, ये क्यों, वो क्यों, हर समय एक विवाद होता है। The solution is that I need to die. और इन सारी बातों का हल है कि मुझे मरना है। And then the life and the light of God can shine through us. और फिर जीवन और परमेश्वर की ज्योति हमारे द्वारा चमक पाएगी। And may God help us. I am also working out in these areas. I am not become perfect. और परमेश्वर हमारी सहायता करे, मैं खुद भी इन क्षेत्रों में काम कर रहा हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं। But more and more we can desire that every day we can experience the life of Jesus. पर ज्यादा और ज्यादा हम ये इच्छा रख सकते हैं, लालसा रख सकते हैं कि हर दिन हम यीशु मसीह के जीवन का अनुभव करें। And for that I need to every day give myself to die to my own will. और उसके लिए मुझे हर दिन मेरे खुद ही के इच्छा को के प्रति मरने की आवश्यकता है। Amen. आमीन।